Supported happy. So today we are going to begin with the lesson number 4, that is more about MS Excel 2010. So हम और ज़्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे? MS Excel 2010 के और functions के बारे में पढ़ेंगे. So here Microsoft Excel is a spreadsheet software having rows and columns. ये क्या होता है आपका Microsoft Excel? आपका spreadsheet software होता है जिसमें rows भी होती है और columns भी होते हैं. You know, in Microsoft Excel we can solve our sums, we can do the data entry and many more things. So it is one of the important components of Microsoft Office system. There are many rows and columns which can be used for inserting, calculating and analyzing data. बहुत सारे rows होते हैं, columns होते हैं जो किस लिए यूज होते हैं? इंसर्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे डेटा को. So MS Excel can all help you in daily tasks. आपकी daily tasks help करता है like maintaining address list और कीपिंग ट्रैक टू डू टास्क की आपको क्या चीज करनी है उनका ट्रैक कर सकते हो. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ये किसने प्रोड्यूस किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोड्यूस किया था, जो किसमें अलाउ करता है आपको, यूजर को अलाउ करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए अपने डेटा को. यूज करती है कलेक्शन, यूज करती है आपकी सेल्स की अरेंज जो होता है आपकी रोज में एंड कॉलम्स पे टू ऑर्गेनाइज डेटा, to organize and manipulate data. So Microsoft Office application was first Microsoft Office application was Excel. क्या थी? Excel थी. So opening MS Excel कैसे ओपन करते हैं MS Excel को? You have to go on your start screen. Over there आपको मिल जाएगा Microsoft Excel प्रोग्राम, अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, फिर आपको क्लिक करना उस पर, तो आपका जो लोड हो जाएगा MS Excel वहाँ पे. So main functions क्या क्या है इसके? Terms related to MS Excel. So let's talk about the terms जो हम MS Excel में यूज करते हैं. The MS Excel 2010 window shows several tools और data. वो आपको बहुत सारे tools और data show करता है which will help you to perform your work easily. आप अपने work को easily perform कर सकते हो वहाँ पे. The main part of Excel window are following main parts है. उसका first क्या है? Title bar. वो कहाँ पे located है? आपके top of the window पे located है और show करता है names of current workbook. File tab से a button located at the top corner that contains the file menu. बटन located है कहाँ पे? टॉप में आपके कॉर्नर में, जिसमें फाइल मेन्यू होते हैं. मेन्यू ऑप्शन अवेलेबल होता है वहाँ पे, जैसे आपका न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, एक्सेट्रा. डैशबोर्ड. सो क्विक एक्सेस टूल बार. क्या क्या क्विकली आप एक्सेस कर पाते हो? दिस आर योर क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज योर टाइटल बार, दिस इज योर प्रोग्राम कंट्रोल बटन, दिस इज योर फाइल टैब, दिस इज योर नेम. यहाँ पे जो भी आपका एक्टिव सेल होगा जिस पर आप क्लिक करोगे उसका नेम यहाँ पे अवेलेबल होगा. हाईलाइट्स अवेलेबल होती है हेडिंग की. वर्कशीट विंडो है आपके यहाँ पे. दिस इज योर रो हेडिंग, दिस इज योर टैब स्क्रॉलिंग टूल बटन, दिस इज योर स्टेटस बार, दिस इज योर स्क्रॉल बार, दिस इज योर टैब स्प्लिट बॉक्स, दिस इज योर कॉलम हेडिंग, दिस इज दीज आर योर ग्रिड लाइन, दिस इज योर फॉर्मूला बार एंड दिस इज योर रिबन. सो Microsoft spent hundreds of millions of dollars advertising Windows 95. Windows 95 की विंडो करने के लिए उन्होंने बहुत millions of hundreds of million dollars को spend किया था Microsoft ने. Now let's talk about Ribbon. Ribbon is like a strip which consists of groups of commands on it. एक strip की तरह होती है, इसमें क्या होता है? Groups of commands होती है. Ribbon group tools और ribbon are organized. Tools होते हैं आपके ribbon पे organized होते हैं groups में उनके functions के accordingly. The ribbon is shown below. This is your ribbon. Now formula bar. It is the bar at the top of the MS Excel window. ये कहाँ पे होता है? Top of the MS Excel window पे होता है यहाँ पे. That displays content of the current cell. वो content display करता है आपके current cell को, जो आपने active cell कर रखा हुआ है. It is used to enter and edit formula. आप यहाँ पे enter कर सकते हो, edit कर सकते हो, अपने formula को calculations perform कर सकते हो. The formula bar also contains the enter R. इसमें enter R भी होता है and cancel के लिए क्या होता है? V बटन होता है. Program control button on the right corner of the title bar. Right corner में आपके title bar के 3 बटन होते हैं. Minimize, maximize और close the worksheet window. Name box, the address of active cell is displayed in this box. जो address होता है active cell का वो इस box में display होता है. Grid lines क्या होती हैं? Vertical और horizontal lines होती हैं जो divide करती है sheet को rows में and columns में. The grid lines. Row. It is the arrangement of cells. Row क्या होता है? Arrangement होता है आपकी cells का horizontal direction में. Each row in a worksheet is identified with the help of its number. उसके numbers के according identify होता है. The rows are numbered from top to bottom. Top से bottom की तरफ number होता है एक ascending order में.
कहाँ से स्टार्टिंग होती है 1 2 3 से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड हो रहा होता है 104857 पे एंड होता है. Now let's talk about column. It is the arrangement of cells in vertical direction. ये arrangement होता है आपके cells का vertical direction में. Each column in a worksheet is identified using a unique label. आप unique label को use करके identify कर सकते हो हर column को. The columns are labeled as A, B, C till Z. A से Z तक होते हैं ये. After Z they can be written as Z के से ज़्यादा चाहिए तो कैसे लिखे होते हैं डबल A, A B, A C. मतलब फिर से ए वाली स्टार्ट हो जाती है. जब ए वाली खत्म हो जाएगी तो बी वाली स्टार्ट हो जाएगी. कहाँ तक होता है एक्स एफ डी तक होता है. सो सेल इट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट. ये बहुत बेसिक यूनिट होती है आपकी वर्कशीट की. कैसे डिफाइन होती है एज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम. ये इंटरसेक्शन होता है आपके रो का और कॉलम का एक सेल बन जाता है. ये सेल होता है. और एक्टिव सेल क्या होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है जिसमें आप वर्क कर रहे हो तो दैट इज द एक्टिव सेल. The currently selected cell that appears highlighted, जिसको आप currently select कर रखा है सेल जो highlight हो रहा है dark black border में वो आपका active cell होता है. The data is entered in the active cell. जो भी आप data enter करते हो वो आपका active cell होता है. Cell pointer it is a thick black boundary. एक thick black boundary होती है जो surround करती है आपके active cell को. Cell address every cell in a worksheet is identified using an address. जो भी cell होता है आपकी worksheet में कैसे identify करते हो आइडेंटिफाई करते हो उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग जो कॉरेस्पॉन्ड होता है आपके कॉलम लेटर में एंड रो नंबर्स में. फॉर एग्जांपल इफ रो 7 एंड कॉलम बी इंटरसेक्ट आपकी रो 7 और कॉलम बी इंटरसेक्ट कर रही है द एड्रेस ऑफ द सेल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन विल बी D7. जो एड्रेस फॉर्म होता है वो क्या होता है D7 होता है. नेम बॉक्स डिस्प्लेज दिस एड्रेस इन द वर्कशीट. जो नेम बॉक्स होता है इस एड्रेस को डिस्प्ले करता है कहां पे वर्कशीट में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्कशीट. इट इज अ सिंगल पेज इन एक्सेल. ये सिंगल पेज होता है आपके एक्सेल में जिसको हम क्या कहते हैं स्प्रेडशीट भी कहते हैं. बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट. कितनी वर्कशीट होती है 3 वर्कशीट्स होती है एक्सेल वर्कबुक में. ईच वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज. हर वर्कशीट में कॉलम्स एंड रोज होती है. ऑन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीस कॉलम्स एंड रोज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. छोटा सा फ्रैक्शन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है एक टाइम पे. यू कैन ऐड मोर वर्कशीट्स व्हेन रिक्वायर्ड. आप और वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है. Now let's talk about workbook. It is a collection of multiple worksheets. ये collection होता है बहुत सारी worksheets का stored होती है single file name में. When you save on MS Excel document, you are actually saving a workbook. जब आप save करते हो अपने MS Excel document का में आप क्या actually save कर रहे हो workbook को save कर रहे हो. Now let's talk about scroll bar. A worksheet window allows you to view the portion of the worksheet. एक worksheet window होती है क्या allow करती है आपको यूज व्यू करने के लिए portion of the worksheet जो डिस्प्ले होती है आपकी स्क्रीन पे. You can use scroll bar to move the window. आप scroll bar को यूज कर सकते हो मूव करने के लिए विंडो को around the view different parts of the active cell worksheet. Worksheet tabs क्या होते हैं? There can be more than one worksheet in Excel. एक से ज्यादा वर्कशीट हो सकती है एक्सेल में and each has a specific name. Yes, of course, हर एक्सेल का हर शीट का एक अपना स्पेसिफिक नेम होता है. Any worksheet can be activated by clicking on the worksheet tab. कोई भी वर्कशीट एक्टिवेट कैसे हो जाएगी उसकी टैब पे क्लिक कर दो. Now tab split box. Tab split box क्या होता है? To the right of the worksheets tabs. At the bottom of the screen की bottom में is the tab split box. क्या है? कौन सा बॉक्स होता है? tab split box होता है. You can drag the tab split box. आप drag कर सकते हो tab split box को उसके साइज को increase करने के लिए decrease करने के लिए उसको view करने के लिए sheet tabs पे. Mouse pointer. The mouse pointer is displayed as black plus sign. कैसे होता है? black कलर का plus sign होता है. Whenever it is located in the cell at the worksheet. कब होता है ऐसा sign? जब कोई भी cell के अंदर located होता है worksheet में आपकी. Another common shape of it is a black arrow. Common shape दूसरी क्या होती है आपकी? एक black arrow होता है. Block क्या होता है? It is a group of cells selected to form a rectangle. Cell का group जो आपने select करा एक rectangle बनाने के लिए. Now entering data in the worksheet. कैसे enter करते हैं data को worksheet में? You can enter the data in the form of number or text by clicking the cell. आप number की form में भी डाल सकते हो, text की form में ABCD में भी डाल सकते हो अपने cell में data को. You can type directly into the cell with the help of keyboard. आप keyboard की हेल्प से भी डायरेक्टली टाइप कर सकते हो. The data which you type in the active cell appears on the formula bar. जो भी डेटा आपने टाइप करा वो कहाँ appear हो जाता है? formula bar में appear होता है.
सो फर्स्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है सेल पे जहाँ पे आपको डेटा को अपने एंटर करना है, उस सेल को एक्टिव करना है। आफ्टर दैट टाइप द डेटा इन द सेल, आपको अपने डेटा को टाइप करना है सेल में, आपको एंटर करना है, प्रेस करना है एंटर, और फिर टैप टू मूव द नेक्स्ट सेल पे, टैप को मूव करना है नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए। यू कैन ऑल्सो प्रेस एरो की, आप एरो की को प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से उसको मूव करने के लिए नेक्स्ट सेल में, एंड एंटर डेटा इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, आप डेटा को एंटर कर सकते हैं डिजायर्ड डायरेक्शन में। रिपीट स्टेप 1 and 2 until you finish, आप 1 and 2 को फिर रिपीट कर सकते हो जब तक आप फिनिश नहीं करते एंटरिंग ऑल डेटा। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट पीस ऑफ हार्डवेयर वाज माइक्रोसॉफ्ट माउस इन 1983। फर्स्ट पीस क्या था, माइक्रोसॉफ्ट माउस था 1983 में। नाउ हाउ टू सेव द डेटा, अपने डेटा को कैसे सेव करते हैं। You should always save your data so that you can access it whenever you need। आपको हमेशा अपने डेटा को सेव करना चाहिए, क्योंकि आपको जब चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। The steps given below will show you to save the data, कैसे सेव कर सकते हो, ये कुछ स्टेप्स शो करेंगे एज अ वर्कबुक इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट आपको क्लिक करना है फाइल टैब पे, फिर आपको क्लिक करना है सेव पे, सेव एज बटन पे, टाइप द नेम ऑफ द वर्कबुक, आपको नेम ऑफ द वर्कबुक को टाइप करना है फाइल नेम बॉक्स में, फिर आपको क्लिक करना है सेव बटन पे। The workbook is saved by the name that you have given, वर्कबुक सेव हो जाएगी जो आपने नेम उसे दिया होगा। The Excel file will be saved with the extension .xlsx, ये एक्सटेंशन होती है उसकी। Now how to select the cell, row and column, कैसे सिलेक्ट करते हैं। Can perform various functions, आप बहुत सारे functions परफॉर्म कर सकते हो, लाइक एडिटिंग हो गया, कैलकुलेटिंग हो गया, डिलीटिंग और मूविंग द डेटा बाय सेलेक्टिंग द सेल्स। सेल्स को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो अपने डेटा को। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फॉलो, आप क्लिक करना है सेल पे जो आपको सेलेक्ट करना है। Then the selected cell appears to be highlighted, जो आपका selected cell है वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। A display a thick border, एक thick border आने लगेगा। In the example given below, like B3 आपका selected है। Now selecting a row, एक row को कैसे select करते हैं। Click on the row heading, आपको row heading पे click करना है। Then you जिसको आपको select करना है, after that आपको you can also select the by clicking on the number of rows, आप number of rows पे भी click करके select कर सकते हो that you want to fill in। The mouse pointer will change its shape, जो mouse का pointer वो अपनी shape change कर लेगा। In the example shown below, row 3 is selected, यहाँ पे row 3 select करी हमने। To select multiple rows, drag the pointer, आपको multiple rows को select करना है, अपने pointer को drag करना है until you are highlight, जब तक आप highlight ना कर दो अपनी सारी rows को जो आपने select करनी है। Now selecting a column, click on the column heading, आपको column heading पे click करना है जो आपको select करना है। The mouse pointer will change to arrow, drop down arrow में change हो जाएगा आपका mouse pointer। So to select the multiple columns, drag the mouse pointer, आपको अपने जो plus का mouse pointer है उसको drag करना है जब तक आप सारी highlight ना कर लो अपनी जो भी आपको column select करनी है। Now selecting all the cells in a worksheet, सारे cells को अपनी worksheet में कैसे select करते हैं। Click on the select all button, आपको click करना है select all button पे, जो आपकी this way all the cells will be get selected, जो आपके सारे cells होंगे वो select हो जाएंगे। Microsoft Window launches window in 3.0 on 3.0 विंडो कब लॉन्च हुई थी, आपकी 24 अगस्त 1995 में लॉन्च हुई थी। Now selecting groups of cells को कैसे select करते हैं। The step given will show you how to select a group of cells, group of cells को हमने कैसे select किया। आपको place करना है अपना mouse pointer plus का mouse pointer over the first, पहले first पे place करना है, फिर आपको drag कर देना है अपने mouse के plus वाले pointer को, उसको drag कर देना है जहाँ तक कि आप select करना चाहते हो। Moving and copying the data, अपने data को move और copy कैसे करते हैं। You can move or copy your data in the worksheet, आप move भी कर सकते हो, copy भी कर सकते हो अपने data को worksheet में। You can copy or move a formula or one cell to another cell, आप एक formula आप one cell को another cell में भी same worksheet में copy कर सकते हो, move कर सकते हो। Excel allows to move or copy, Excel हमें allow करता है move करने के लिए, copy करने के लिए values को entire cell की including formula, text and comments। Select the cell or cells containing data, आपको cell या cells containing data को select करना है जो आपको move और copy करना है। फिर आपको click करना है home tab पे, आपको फिर उसके बाद click on one of the following buttons, आपको move या तो scissor पे कट करना है, move कर लिया, copy के लिए आपको copy option पे click करना है, या फिर आप Ctrl+C भी कर सकते हो copy करने के लिए, Ctrl+ भी आपका pasting के लिए होता है। In this example, we can copy text, आप text भी copy कर सकते हो so that it will remain in its original location, जिससे वो अपनी original location पे भी रहेगा और आप उसको कहीं और paste भी कर सकते हो, as well as new location पे भी आ जाएगा वो।
फिर आपको क्लिक करना है सेल पे वेयर यू वांट टू प्लेस द डेटा, कि आप उस डेटा को कहाँ प्लेस करना चाहते हो। फिर आपको फिर किस पे क्लिक करना है, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, पेस्ट बटन पे। फिर आपका डेटा होगा वो कॉपी हो जाएगा न्यू लोकेशन पे। नाउ डिलीटिंग द सेल्स, रोज एंड कॉलम्स, कैसे डिलीट करते हैं सेल्स को, रोज को, कॉलम्स को। इफ यू डू नॉट नीड एनी ऑफ सेल्स, रोज और कॉलम, देन यू कैन डिलीट इट इजीली। अगर आपको कोई सेल्स या रोज या कॉलम नहीं चाहिए, आप उसको इजीली डिलीट कर सकते हो। Excel will delete the data within the selected cells, rows or column which you want to delete. Deleting the cells, cells को कैसे delete करते हैं? If you want to delete the cells along with its data, follow these steps. First आपको select करना है cells को जो आपको delete करने हैं, then click करना है आपको home tab पे अपने ribbon पे, फिर आपको click करना है on the down arrow of the to delete, फिर आपको click करना है delete cell पे, that delete dialog box will appear, जो delete dialog box है वापस सब appear हो जाएगा। फिर आपको click करना है radio button of an option, रेडियो बटन ऑफ एन ऑप्शन टू शिफ्ट द सराउंडिंग सेल्स को शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट और अप टू फिल द एम्प्टी स्पेस। देन आपको क्लिक करना है ओके पे टू डिलीट द सेल्स, ओके पे क्लिक करना है डिलीट करने के लिए सेल्स को। रिमेंबर व्हेन यू डिलीट द सेल, द सराउंडिंग सेल विल ऑटोमेटिकली मूव टू फिल द एम्प्टी स्पेस, जो आसपास की सेल होंगे वो उसकी एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए मूव हो जाते हैं। नाउ डिलीटिंग द रोज, रोज को कैसे डिलीट करते हैं? If you want to delete an entire row, follow these steps. First आपको क्लिक करना है हेडिंग पे ऑफ द रो दैट यू वांट टू डिलीट, उस हेडिंग पे जिसको आपको डिलीट करना है। देन आपको क्लिक करना है होम टैब पे ऑन द रिबन, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ डिलीट, ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा डिलीट का। देन आपको क्लिक करना है डिलीट एंटायर रो पे, जो एक्सेल होगा वो डिलीट कर देगा आपकी पूरी की पूरी रो को। Microsoft launched Windows 8 and Microsoft Surface in 26 October 2012. कल लॉन्च करा था Microsoft 8 को इन्होंने 26 अक्टूबर 2012 में लॉन्च किया था। Deleting the columns, columns को कैसे डिलीट करता है? If you want to delete the entire column, follow these steps. अगर आपको entire column को डिलीट करना है, आपको कुछ steps को फॉलो करना है। आपको क्लिक करना है अपने हेडिंग पे अपने कॉलम पे that you want to delete. आफ्टर दैट क्लिक करना है आपको होम टैब पे ऑन द रिबन, आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो और डिलीट, उसके बाद क्लिक करना आपको डिलीट एंटायर कॉलम ऑप्शंस पे, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना, आपका जो एंटायर कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। क्लियरिंग द डेटा फ्रॉम अ सेल, एक सेल से डेटा को कैसे क्लियर करता है? यू वांट टू क्लियर द डेटा फ्रॉम अ सेल, देन फॉलो दीस स्टेप्स। फर्स्ट आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है सेल को, फिर आपको प्रेस करना है डिलीट की पे, द डेटा इन द सेल विल बी डिलीटेड। Now inserting a row, column और cell, कैसे insert करते हैं किसी row को, column को, cell को? If you can add a row, column और cell in a pre-existing data, जो आपके पास डेटा उसमें आप ऐड कर सकते हो दूसरों को डिस्टर्ब करे बिना। insert करने के लिए क्या करते हैं? अगर हमें एक रो इंसर्ट करनी है तो आपको क्या करना होगा, क्लिक करने पड़ेगा हेडिंग पे ऑफ द रो अबव, रो के अबव वाली हेडिंग पे क्लिक करने का, जो आपको रो इंसर्ट करनी है एक न्यू रो में, क्लिक करना है आपको होम टैब पे ऑन द रिबन, होम टैब है आपके रिबन पे, उस पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है, वहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको इंसर्ट एंटायर रो, आपको क्लिक करना है इंसर्ट एंटायर रो ऑप्शन पे, रो विल बी इंसर्ट, एक पूरी की पूरा आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी आपके डेटा में, और जो पहले वाली वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। On 25 October 2004, Microsoft launches Windows XP में Microsoft ने क्या लॉन्च किया था? Windows XP को लॉन्च किया था। Now inserting a column, column को कैसे इंसर्ट करते हैं? If you want to insert a column, follow these steps. आपको क्लिक करना है heading of column to the left to which you want to insert a new column, जिसमें आप new column को इंसर्ट करना चाहते हो, आपको क्लिक करना है होम टैब पे अपने रिबन पे, देन आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे इंसर्ट करने के लिए, फिर आपको क्लिक करना है इंसर्ट एंटायर कॉलम पे, और कॉलम विल बी इंसर्ट, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, जो कॉलम्स होंगे बाकी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इंसर्टिंग सेल्स, सेल्स को कैसे इंसर्ट करता है? इफ यू वांट टू इंसर्ट अ सेल, फॉलो दिस स्टेप। आपको सिलेक्ट करना है सेल्स को, वे यू वांट टू इंसर्ट द सेल, न्यू सेल, आपको सेल सेलेक्ट करना है जहां पर न्यू सेल इंसर्ट करना चाहते हो, एक्सेल इंसर्ट करेगा सेम नंबर ऑफ सेल्स एज यू सेलेक्ट। नाउ क्लिक करना है आपको होम टैब पे अपने रिबन पे, फिर वहां पे क्लिक करना है आपको ड्रॉप डाउन एरो ऑफ इंसर्ट, फिर वहां आपको क्लिक करना है इंसर्ट ऑप्शन पे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा ऐसे, फिर आपको क्लिक करना है अपना बटन, क्लिक ऑन द बटन ऑफ द ऑप्शन टू शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट द सराउंडिंग सेल्स पे क्लिक करना है, to the right downward, cells down, shift cell down पे क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक कर देना है
ओके पे। नाउ renaming and deleting the worksheet, कैसे rename करते हैं और कैसे delete करते हैं अपनी worksheet को। renaming the worksheet, कैसे आप उसको फिर से नेम देते हैं। you can give a new name to the worksheet, आप एक new name दे सकते हैं अपनी worksheet को। you can change the name according to you, अपने according change भी कर सकते हैं name को that you find in your worksheet easily. By default the worksheets are named as sheet 1, sheet 2 as soon. The following steps will be shown you like first आपको double click करना अपनी tab पे for the worksheet you want to rename. Then the name of the worksheet is highlighted, जो name of the worksheet का वो highlight होगा. Now you can dive up, आप वहाँ पे type a new name of the worksheet and then press enter की। आपको new name type करना है worksheet का, फिर enter की press करना है। A worksheet name can contain up to 31 characters, एक worksheet के name में 31 characters तक आ सकते हैं, including the space include होगा 31 characters में। Now delete कैसे करते हैं वर्कशीट को। You can delete the worksheet if it seems to be of no use, अगर कोई यूज की नहीं है तो आप उसको delete भी कर सकते हो। When you delete a worksheet, it's permanently removed from the workbook file, workbook file से permanently remove हो जाती है। The following steps are given. फर्स्ट आपको राइट क्लिक करना अपनी वर्कशीट टैब पे जिसको आपको डिलीट करना है, फिर आपको क्लिक करना है डिलीट पे। The worksheet contains any data, Excel prompts you to confirm the deletions. सो आपको क्लिक करना है डिलीट ऑप्शन, फिर से एक्सेल डिलीट कर देगा आपकी वर्कशीट को परमानेंटली। द करंट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 विंडोज। आजकल क्या चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 विंडोज है। नाउ क्लोजिंग एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल को कैसे क्लोज करते हैं। वंस यू कंप्लीट योर वर्क, जब आपका सारा काम हो जाएगा, यू कैन क्लोज द एमएस एक्सेल। द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी शोन यू how to close MS Excel। फर्स्ट आपको क्लिक करना है फाइल टैब पे, देन क्लिक करना है एग्जिट बटन पे, MS Excel आपका क्लोज हो जाएगा। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.